Good morning, students. Today we are going to discuss another topic, that is application of biotechnology in the field of medicines. So now let us discuss with the topic. Now, as you can see, the heading biotechnological applications in medicine. Now, you know that the recombinant DNA technology is a very important technology which can transfer the desired DNA from one organism to the another organism to the host in which it is required, and then we can multiply the host organism as well as the desired DNA which we have inserted it. So we will be magnifying the total desired DNA as such and then later using it. Now, since this is an effective technique, that is the reason why mass production of safe and effective medicines can also be prepared with the help of recombinant DNA technology. Now, further recombinant DNA technology do not induce any unwanted immunological responses as it is in case of things which is obtained from non-human sources. Now, let us talk about recombinant therapeutics. As you can see the heading as such, various kind of medicines have been synthesized. This is the brand name, you can see in the tabular form it has been given. This is the brand name, this is a generic name, this is a company which is involved. See, Eli Lilly. Diabetes, therapeutic category is diabetes, indications are diabetes. Now there are so many companies which have prepared various kind of medicines, that is the medicines which have been prepared from with the help of recombinant DNA technology, and the side effects are very minimum in such kind of medicines. They do not induce any kind of immunological response. So that is their benefit. Now let us discuss about genetically engineered insulin. Now you know the importance of insulin. It is produced in the pancreas, and the main motive of the insulin is to lower down the sugar level which is present in the blood. Now, if suppose insulin gene, the gene which is responsible for producing insulin hormone, has a defect, that person will not produce insulin hormone which is correct, and that will, because of that, diabetes can occur. Now, in the past, insulin which was used for curing diabetes was extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs. तो पहले क्या होता था कि हम लोग इंसुलिन को डेराइव करने के लिए पिग्स या कैटल के पेंक्रियास से उसको डेराइव करते थे. नाउ बिकॉज ऑफ दैट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स वॉज बाउंड टू अकर. आप जानते हो नॉन ह्यूमन से आपने उसको डेराइव किया है तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, तो साइड इफेक्ट्स होते भी थे. तो बाद में एक कंपनी थी जिसका नाम था, अमेरिकन कंपनी एली लिली, 1983 में उसने इंसुलिन को बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, और उसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं. ना इंसुलिन के बारे में अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स A and B which is linked together. That is a mature form that is linked together by disulfide bridges. Now when insulin is produced, it is produced in an immature form consisting of another polynucleotide chain called as C chain. Now ये जो प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वो इमेच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, और जब वो एल्कलाइन मीडियम में प्रोड्यूस होने के बाद आती है, बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म and the C polypeptide chain is eliminated. Now this C chain, it is not present in the mature insulin. It is removed during the maturation process into a mature insulin as such. Now
एली लिली के पास के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि वो इंसुलिन जो बना रही थी वो मैच्योर फॉर्म में कैसे उसको एक्सप्रेस करे, मैच्योर फॉर्म में कैसे बनाए। यानी कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उसमें, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये एक सी चेन है, यहाँ पे ये ए चेन है और ये बी चेन है, ये रिमूव करना ज़रूरी था। तो एली लिली ने एक तरीका अपनाया, वो ये कि जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, एक जनरल ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन का तरीका बताया गया है। ये ह्यूमन इंसुलिन से पैंक्रियाज है, यहाँ से आपने वेक्टर लिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसके बाद इसी बैक्टीरिया को के नंबर को बढ़ाया। दिस बैक्टीरिया कंटेन्स द डिजायर्ड डीएनए ऑल्सो। तो नेचुरली अगर इस बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो डिजायर्ड डीएनए है, प्लाज्मिड के साथ जो डीएनए अटैच है, उसका भी नंबर बढ़ेगा, तो मास प्रोडक्शन हो सकता है इंसुलिन का। अच्छा, इसका जो एली लिली ने एक तरीका अपनाया था इन ऑर्डर टू क्रिएट द रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, और यू कैन से इंसुलिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। क्या तरीका था देखिए, इन्होंने एक बैक्टीरिया क्या यूज़ किया था जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। उसमें ये वेक्टर प्रेजेंट है और उस वेक्टर में ये मार्कर जीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन आप देख रहे हैं। यहाँ पे उसी के ठीक बगल में देखिए आप, यहाँ पे इंसुलिन जीन इन्होंने इसमें इसके अंदर इनॉकुलेट कराई थी, कहने का मतलब इंसर्ट कराई थी, और उसके बाद इसी वेक्टर को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था ये एस्चेरिचिया कोलाई में। यानी कि देखिए, सिर्फ एक चेन का ट्रांसफ़र किया है, ए सब यूनिट। इंसुलिन में 2 सब यूनिट होते हैं, ए और बी। ये जो दूसरा बी सब यूनिट है, इन्होंने फिर दूसरे एस्चेरिचिया कोलाई से जो वेक्टर ऑब्टेन किया था उसके अंदर कट किया पहले विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और उसमें वो अपना डीएनए इंसर्ट किया। यानी कि 20 सब यूनिट का जो डीएनए है वो यहाँ देखिए, यहाँ इंसर्ट हुआ है, ये अलग से इंसर्ट किया इन्होंने। तो इंसर्ट करने के बाद दिस होल वेक्टर अलॉन्ग विद द डिजायर्ड डीएनए वाज अलाउड टू एंटर इनसाइड अनदर ई कोलाई सेल, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए, इस पहले वाले केस में एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपका चेन दिख रही होगी, ए चेन एक्सप्रेस हो रही है। दूसरे केस में देखिए, एस्चेरिचिया कोलाई में बी चेन एक्सप्रेस हो रही है, ए और बी दोनों एक्सप्रेस हो रही है अलग अलग एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में। अब इस एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया कंटेनिंग द ए चेन, अगर इसको आप एक प्रॉपर मीडियम में रखिए, बायोरिएक्टर्स में रखिए और इसके नंबर को बढ़ा लीजिए, तो बट नेचुरल है इसके अंदर ये जो ए चेन है वो बहुत हाई नंबर में प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक इसी तरह से एस्चेरिचिया कोलाई कंटेनिंग द बी जीन, जो बी चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी एक बायोरिएक्टर में रखिए और उसके नंबर को बढ़ा लीजिए, तो बट नेचुरल है इसका नंबर बढ़ेगा तो उसके अंदर रखा हुआ जो आपका इंसुलिन का जो बी चेन है उसका भी नंबर बढ़ेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज इन अनदर स्टेप, जिसको हम बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग स्टेप, इसमें आप क्या करेंगे, यू नीड टू प्यूरिफाई एंड सेपरेट द 2 प्रोटीन्स, दैट इज containing the A chain and containing the B chain, and then you need to add disulfide bridges in between the two in order to make them convert it into a mature insulin. तो सिंपली करना क्या है, 2 एस्चेरिचिया ई कोलाई में एक जो ए चेन का जीन होता है वो उसके वेक्टर में रख के एस्चेरिचिया कोलाई में ट्रांसफर कर देना है। दूसरे केस में चेन बी का जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एस्चेरिचिया कोलाई में ट्रांसफ़र कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, और वेक्टर को फिर एस्चेरिचिया कोलाई में एंटर कर जाएगा। यहाँ पे ए चेन बनेगी, यहाँ बी चेन बनेगी। ये ए और बी चेन को प्यूरिफाई और सेपरेट करना है और आपस में इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रिजेस ज्वाइन कर देने हैं, तो इससे एक्टिव इंसुलिन बन जाएगा। और यही किया था एस्चेरिचिया कोलाई ने। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि इंसुलिन को जो है वो ओरली क्यों नहीं दिया जा सकता। इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जा सकता, उसकी वजह ये है कि एसिड मीडियम जो हमारे बॉडी में है
उसके प्रेजेंस में उसकी चेन ब्रेक डाउन कर जाएगी बिफोर गेटिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब ब्लड स्ट्रीम में आने से पहले ही वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही वजह है, आप जानते हो इंसुलिन को हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं, ओरली नहीं देते। तो लेट अस टॉक अबाउट द होमवर्क असाइनमेंट। यहाँ रोल ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी, इट इज़ वेरी सिंपल, यू नो इट वेरी वेल। Why insulin cannot be taken orally, I have already told you. Now, how the company was able to form a recombinant insulin? That is in your course and you have to answer that. I have already explained it to you. Thank you. Have a nice day.